वीडियो करो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Dear students, today our topic is, machines and emotions. It is an essay by Bertrand Russell. We have to continue from page number 156. Yes, machines are worshipped because they are beautiful and valued. And valued because they confer power. They are hated because they are hideous, loathed because they impose slavery. Pause. Don't let us suppose that one of these attitudes is right and the other is wrong. Any more than it would. Any more than it would be right to maintain that men have heads, but wrong to maintain that they have feet. Though we can easily imagine Lilliputians disputing the question concerning Gulliver. A machine is like a jinn in the Arabian Nights, beautiful and beneficent to its master, but hideous and terrible to his enemies. But in our day, nothing is allowed to show itself with such naked simplicity. The master of the machine, it is true, lives at a distance from it, where he cannot hear its noise or see its unsightly heaps of slag or smell its noxious fumes. If he ever sees it, the occasion is before it is installed in use, when he can admire its force or its delicate precision without being troubled by dust and heat. But when he challenged to consider the machine from the point of view of those who have to live with it and work it, he has a ready answer. He can point out that owing to its operation, these men can purchase more goods, often vastly more than their great-grandfathers could. It follows they must be happier than their great-grandfathers if we ought accept an assumption which is made by everyone. Yes, students, let us try to understand this term. Machines are worshipped because they are beautiful. Machines are worshipped. Worshipped here means praised, admired. मशीनों की तारीफ की जाती है because they are beautiful, they are pretty, ये खूबसूरत हैं. And valued, and they are valued. Valued means cherished or given importance. उनको अहमियत दी जाती है because they confer power, because they award power, they bestow power, they give power. वो power यानी ताकत अता करते हैं. They are hated because they are hideous. उनकी नफरत की जाती है because they are hideous, they are ugly, they are disgusting, they are horrible. ये बद शक्ल हैं, बदनुमा हैं. And loathed means disliked. They are loathed because they impose slavery. क्योंकि वो क्या करते हैं, वो गुलाम बनाते हैं. They impose slavery. Slavery means a practice of owning human beings. Don't let us suppose, हमें ये फर्ज नहीं करना चाहिए, that one of these attitudes is right and the other wrong. उनमें एक एटीट्यूड, एक फीलिंग, एक बिहेवियर गलत है
सही है और दूसरा गलत है। ऐसा हमें फर्ज नहीं करना चाहिए। एनी मोर देन इट वुड बी राइट टू मेंटेन दैट मैन हैव, ज्यादा बनिस्बत क्या है ये सही है। इट वुड बी राइट टू मेंटेन, ये मेंटेन करना चाहिए। हाँ, मेंटेनिंग मीन्स बरकरार रखना, और इन इंग्लिश इनेबल टू कंटिन्यू। हाँ, कि हमें ये बरकरार रखना चाहिए, ये जारी, ये मतलब याद रखना चाहिए मुसलसल तौर। मैंने हेड्स इंसानों के सार है, बट रॉन्ग टू मेंटेन, लेकिन ये मेंटेन करना गलत है। दे हैव फीट, कि उनको उनके पाँव हैं, यानी वो चल सकते। दो वी कैन इजीली इमेजिन, अगर हम आसानी के साथ इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं दैट yes dear student, easily imagine Lilliputans. You know Lilliputans, you had read in 9th class, 8th class. uh, you can easily imagine, we can easily imagine, हम आसानी के साथ ख्याल कर सकते सोच सकते हैं। Lilliputans disputing the question concerning us, ललिपूत वो आर्ग्यू करते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं, वो तकरार करते हैं इस सवाल का जिसका ताल्लुक गुलिवर से है। Gulliver was from our world and Lilliputans were a race of people which were hardly 6 inches. A machine is like a jinn, G-J-I-N-N, jinn. ये एक जिन की तरह है। किस जिन की तरह? इन अरबियन नाइट्स, जो अरबियन नाइट्स हैं, अरबियन नाइट्स, यू नो अरबियन नाइट्स जो हैं, ये एक कलेक्शन है ऑफ स्टोरीज, इंडियन स्टोरीज, पर्शियन स्टोरीज, अरबियन स्टोरीज। इन उर्दू से अलिफ लैला, और इन कश्मीरी में हम कहते हैं हजार दास्तान। हाँ, लाइक बाई लाइक स्टोरीज। हाँ, तो वहाँ मशीन जो है वो एक जिन की तरह काम करती है। इट इज जस्ट लाइक, इट इज ए कंपेरिजन, इट इज ए सिमिलर सॉरी, ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशिएंट टू इट्स मास्टर। ये जिन जो है ये खूबसूरत भी है और रहमत है अपने मालिक के लिए, फायदा मंद है अपने मालिक के लिए। बट हाइडियस इन टेरिबल टू इट्स एनिमीज, बट ये हार्मफुल है, टेरिबल आल्सो मीन्स हार्मफुल टू हिज एनिमीज, जो अपने दुश्मन। जिस तरह आपने सुना होगा जो अरबियन नाइट्स हैं, या आप जो दास्तानें सुनते हैं उनमें वो कभी कभी जिन का जिक्र होता है, ये वो मालिक को कितना फरमान बरदार होता है। इसी तरह जो है ये मशीन है, ये अपने मालिक के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए ये खतरनाक है। उनके लिए हॉरिबल है, डिस्गस्टिंग है। Yes, dear student. But in our day, nothing is allowed to show itself with such naked simplicity. लेकिन हमारे दिनों में किसी चीज को भी इजाजत नहीं है कि उसको दिखा जाए खुद ऐसी इतनी नेकड मीन्स एक्सपोजर, या साफ साफ दिखाया जाए सादगी के साथ। ये आजकल के जमाने में दिखाना नामुमकिन है। The master of the machine, it is true, lives at a distance from it. जो इस मशीन का मालिक है, ये सच है, वो दूर रहता है मशीन से। While he cannot hear its noise or see its unsightly heaps of slag or smell its noxious fumes, वो इतना दूर होता है। Yes, dear student, वो इतना दूर होता है वो न इसका शोर सुन सकता है, न देख सकता है। अनसाइटली मीन्स अनसीन, जो हीप्स ऑफ स्लेग हैं, जो वेस्ट के ढेर हैं, और स्मेल इट्स नॉक्शियस फ्यूम, या वो बू ले सकता है, सूंघ सकता है इसके जो नॉक्शियस मीन्स, यस नॉक्शियस मीन्स इंजूरियस, नॉक्शियस मीन्स हार्मफुल, जो इसका फ्यूम्स हैं, वेपर। इफ ही एवर सीज, अगर वो इस मशीन को कभी देखता है,
हाँ, तो यहाँ वो कभी देखता है, वो क्या है, द ओकेजन इज बिफोर इट इंस्टॉल्ड इन यूज। वो चांस है वो जब उसको इस्तेमाल में सेटअप किया जाता है, लगाया जाता है, उसे पहले। व्हेन ही कैन एडमायर, तो वो क्या कर सकता है, वो तब एडमायर तारीफ कर सकता है। इट इज फोर्स, इसका ताकत कितना है, इसकी कुवत कितनी है, और इट इज डिलिकेट प्रिसिशन, या इसकी जो वेरी वेरी फाइन प्रिसिशन, ये मींस करेक्टनेस, जो उसकी दृष्टि है, विदाउट बीइंग ट्रबल्ड बाय डस्ट इन हीट। तो वो क्या करेगा कि ये कोई परेशानी नहीं करेगा, हाँ, किस जो डस्ट है या हीट है। यस, जस्ट when he is challenged to consider the machine from the point of view of those, जब उस when he is challenged, जब उसको चैलेंज किया जाता है कि इस मशीन को आप किस लिहाज से देखते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज, उन लोगों के नुक्ते निगाह से, हु हैव टू लिव विद इट, जिनको इसके साथ रहना है, और वर्क इट, या उसको वो चलाते हैं, ही हैज ए रेडी आंसर, उसका एक क्विक आंसर होता है, तुरंत जवाब होता है। हाँ, यानी उसने वो जवाब तैयार कर रखे होता है। क्या कहता है, he can point out, he can comment that owing to this operation, जब भी ये मशीन चलती है, these men can purchase more goods. Who, which men? Those who work, live with it, and those who work with it. हाँ, तो वो क्या कहता है, these men can purchase more goods. ये लोग ज्यादा ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, often vastly more, अक्सर ज्यादा ज्यादा, किनसे, देन दियर ग्रैंड फादर्स को, बनिस्बत उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स, दादे परदादे, वो खरीद सकते। इट फॉलोज, इट मीन दे मस्ट बी हैप्पियर देन दियर ग्रैंड फादर, इसका मतलब है वो अपने ग्रैंड फादर्स जो हैं उनसे ज्यादा खुश है। इफ वी ऑट एक्सेप्ट एन, अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, एग्री करेंगे, एन एजम्पशन, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए, हाँ, एक कयास, इसको हम तस्लीम करेंगे, विच इज मेड बाय एवरी, जो हर एक जो मफरूजा कायम करता है। हाँ, नाउ व्हाट इज द एजम्पशन, दैट लाइज इन नेक्स्ट स्टेप। Yes, dear students, hope you are attentive. The assumption is that the position of material commodities is what makes men happy. ये assumption है, ये मफरूजा है, ये कयास है कि जितनी मटेरियल मादी सामान होगा, चीजें होंगी, उतने लोग क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। इट इज थॉट दैट ए मैन हु हैज 2 rooms and 2 beds and 2 loaves must be twice as happy as a man who has 1 room and 1 bed and 1 loaf. Again here it is a simile. हाँ, ये ख्याल किया जाता है, एक शख्स जिसके पास 2 कमरे हैं, 2 बिस्तर हैं, 2 लोव्स, यानी खाने के लिए 2 रोटी के टुकड़े हैं, वो डबल यानी दुगना, 2 times as happy as a man, उस शख्स से दुगना खुश होगा, who has 1 room, जिसके पास 1 कमरा है, 1 bed, 1 बिस्तर है, and 1 loaf, 1 रोटी है। In a word, yes dear student, in a word it means briefly, मुख्तसर, it is thought that happiness is proportional income, इसलिए यहाँ लगाया मैं, ख्याल किया जाता है जो हैप्पीनेस है, इट इज प्रोपोर्शनल, इट इज रिलेटेड, इसका ताल्लुक इनकम, यानी जितनी ज्यादा इनकम, जितनी ज्यादा आमदनी, उतना ज्यादा खुश। A few people not always quit themselves, चंद लोग, और नॉट ऑलवेज क्विट, हमेशा नहीं, बिल्कुल मुखलिसाना तौर, challenge this idea. A few people challenge this idea. Not always. They are not sincere in this regard. They challenge this idea, object this idea in the name of religion and morality. किसके नाम पर, मजहब के नाम पर, या इखलाकियात के नाम। Dear students, I feel you know what is morality. Morality is one man's sense what is wrong or what is right. But they are glad if they increase their income by the eloquence of preaching. लेकिन वो glad, खुश होते हैं अगर वो अपनी इनकम इंक्रीज करेंगे by eloquence,
eloquence in Urdu से खुश बयानी, in English fluent and appropriate use of language, that is known as eloquence. अगर ये मौजूद तरीके से और रवां तरीके से लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे इसमें तबलीग करने में, which people in the name of religion or people in the name of money, it is not from a moral religion point of view that I wish to challenge it. मैं जो मजहबी नुक्ते निगाह है अखलाक में इससे चैलेंज नहीं करता, that I wish to challenge it, it is from the view of psychology, observation of life. ये किस नुक्ता निगाह से? Psychology, ilmi nafsiyat. In English we can say the psychology is the science of human behavior, science of human mind, science of human behavior or human mind, that is psychology. Yes. And observation of life, जब हम जिंदगी का मुशाहदा करते हैं. If happiness is proportional to income, अगर happiness जो है it is related, इसका ताल्लुक income से है, आमदनी, is from the case of machinery is unanswerable. फिर जो मशीनरी का मामला है ये लाजवाब. Unanswerable, you know, unable to be answered. If not, अगर नहीं, the whole question remains to be. अगर जवाब नहीं मिलेगा तो ये पूरा सवाल जो है, it remains to be examined. It means it is to be examined, it is to be criticized. It is to be criticized. Then we have to, we as critics have to give our argument. Yes, dear students, hope you are not bored. Men have physical needs and they have emotions. इंसान जो है उनको बॉडीली ज़रूरियात हैं, and they have emotion, उनके जज्बात भी हैं. हाँ, while physical needs are unsatisfied, they take first place. जबकि जो इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है उनको पूरा नहीं किया जाता है, unsatisfied means not met, they take place, they take serial number 1, or they get preference. But when they are satisfied, when they are met with emotions unconnected with them, जो feelings है, emotions हैं which are not related with them, जिनका ताल्लुक उनके साथ नहीं होता, become important, वो जरूरी बन जाते, अहम बन जाते हैं in deciding, फैसला लेने में, whether a man is to be happy or not. आए एक शख्स ये खुश है या नाखुश. In modern industrial community, जो जदीद सनती समाज है, there are many men, women and children. बहुत सारे लोग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे लोग हैं, whose bear means only, और mere physical needs are not adequately supplied, जिनकी जो सिंपली जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसमें वो पूरी नहीं हो सकती मुनासिब तौर मौजूद तौर. As regards them, जैसा उनका ताल्लुक, I don't deny, I agree, I do not deny means I agree, मैं accept करता हूँ that the first requisite, जो पहली ज़रूरत है for happiness के लिए, खुशी के लिए, is an increase of income. वो क्या है? वो इनकम में बढ़ोतरी है, बढ़ावा है. but they are a minority, लेकिन वो क्या है? Minority means less in number or lesser in quantity. And it would not be difficult to give the bare necessities of life, all of them. ये मुश्किल नहीं होगा, उनको हम सिर्फ क्या दे देंगे? जिंदगी की बुनियादी जरूरियात इन सबों को, जैसे हमारे समाज में भी होता है, सबों को जिंदगी की क्या पता क्या बात है, चलो हो जाएगा साथ के लिए. It is not of them, ये उनका नहीं है that I wish to speak, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ. Yes, dear student, thanks. But of those, ये उनके लिए मैं बात करता हूँ, who have more than is necessary to support existence. लेकिन ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है जिनके वजूद को सपोर्ट देना है, सहारा देना है. Not only those who have much more, नहीं सिर्फ वो उनको जिनके पास बहुत ज्यादा है, but also those who have only a little more. लेकिन ये उनकी बात भी है जिनके पास थोड़ा ज्यादा है.
हाँ जिनके थोड़ा ज़्यादा है, ये डियर स्टूडेंट। Why do we, in fact, almost of us desire to increase our income? Haram gets the karon. Take your inshallah. Yes, net thoda kam hai. Yes, yes, no. Why do we, page number 157, why do we, in fact, almost of us desire to increase our income? सवाल पैदा होता है हम में से तकरीबन सभी लोग क्यों तमन्ना करते हैं हम अपनी आमदनी में इजाफा करें, इनमें इसमें बढ़ोतरी करें। It may seem at first sight as though material goods were what we desire. It may appear, ये लगता है, it may seem at first sight, पहली नजर में अगरचे जो मटेरियल गुड्स हैं वो सभी क्या करते हैं, उसकी सभी लोग चाहत करते हैं। बट इन फैक्ट, लेकिन हकीकत में वी डिजायर दीज मेनली इन ऑर्डर टू इम्प्रेस आवर नेबर्स। लेकिन हकीकत ये हम उनकी तमन्ना ही इसलिए करते हैं, हम खास कर क्या करते हैं, अपने जो हमसाया हैं, हाँ उन पे क्या करते हैं, उन पे हम ये मुतासिर होने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे मुतासिर हो। इम्प्रेस मीन्स मेक फील एडमायरेशन। Yes, dear students, when a man moves into a large house in a more genteel quarter, he reflects that better people will call on his wife, and some unprosperous cronies of former days are dropped. बहुत सच्ची बात है। फॉर एग्जाम्पल, when a man moves into a large house, जब कोई शख्स मतलब नया मकान बनाता है, बढ़िया मकान बनाता है, तो जब वो इसमें शिफ्ट करता है, और इन ए मोर जेंटिल क्वार्टर, एक बढ़िया, जेंटिल मीन स्टाइलिश, स्टाइल वाला, फैशनेबल क्वार्टर बिल्डिंग में, ही रिफ्लेक्ट, ही कंसिडर्स, ही थिंक्स सीरियसली, वो संजीदगी से सोचता है दैट बेटर पीपल विल कॉल ऑन हिज वाइफ, कि अच्छे अच्छे लोग उसकी बीवी को कॉल ऑन करेंगे। कॉल ऑन, यू नो इट मीन्स इनवाइट, घर वाली को ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग दावत देंगे। हाँ, कश्मीर कहते हैं बोर ज्यादा बनाए। एंड सम अनप्रॉस्पेरस क्रोनीज ऑफ फॉर्मर डेज कैन बी ड्रॉप, एंड सम prosperous means rich, unprosperous means poor. Cronies, CRONIES. Cronies means intimate friends or associates, close friends of former days, पुराने दिनों के, अगले दिनों के, can be dropped, उनको छोड़ा जाए, है ना। जो ज्यादा है, नए जब यार मिलते हैं तो पुराने भूल जाते हैं। Yes, dear students. When he sends his sons to a good school or an expensive university, he consoles himself for the heavy fees by thoughts of social kudus to be gained. जब वो भेजता है अपने बच्चों को, when he sends his sons, अपने बेटों को गुड स्कूल, अच्छे स्कूल में, और इन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, और इन यूनिवर्सिटी where high fees are paid, he consoles him, वो अपने आप को कंसोल करता है। कंसोल मीन्स तसल्ली देता है। कंफर्ट, सोलेसेस हिमसेल्फ फॉर हैवी फीस, जो मतलब उसको बहुत हैवी फीस देना पड़ता है, बाय द थॉट्स ऑफ द सोशल कुदस टू बी गेन। इस सोच के साथ, सोशल कुदस मीन्स सोशल फेम, सोशल रिनाउंस, ओ उसको मशहूरी का, समाजी मशहूरी का ख्याल है। In every big city, whether of Europe or of America, houses in some districts are more expensive than equally good houses in other districts. जो मकान है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं than equally good houses, बराबर ऐसे ही मकानों के अदर डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, दूसरे अजला में।
merely only because they are more fashionable. सिर्फ इस लिहाज से कि वो ज़्यादा फैशनेबल होते हैं, ज़्यादा जंटील होते हैं, ज़्यादा स्टाइल वाले होते हैं. One of the most powerful of all passions is the desire to be admired and respected. Very important life. One of the most powerful of all passions is the desire to be admired and respected. जो हमारी इमोशंस हैं उनमें सभी जो इमोशन है उनमें एक बहुत ही ताकतवर इमोशन है. वो क्या है? इज द डिजायर. वो ये चाहता टू बी एडमायर्ड, कि तारीफ की जाए, एंड रेस्पेक्ट, इज्जत की जाए. एज थिंग्स स्टैंड, एज थिंग्स आर, एडमिरेशन, रेस्पेक्ट और गिवन टू द मैन हु थिंक्स रिच. एडमिरेशन दी जाती है, तारीफ की जाती है, रेस्पेक्ट किया जाता है उस आदमी को जो अमीर लगता है. दिस इज द चीफ रीजन. ये मेन रीजन है वाई पीपल विश टू बी रिच. क्यों लोग चाहते हैं हम अमीर हों, क्यों लोग चाहते हैं हम अमीर हों. Yes, dear students. This is the chief reason. This is the chief reason. This is the main reason why people wish to be rich. The actual goods purchased by their money play quite a secondary part. जो असली चीजें उन्होंने परचेज किए, खरीदी हैं अपने पैसे से, वो प्ले करते, अदा करते बिल्कुल एक दूसरा रोल. यानी उसकी बुनियादी अहमियत नहीं है. प्राइमरी देन देयर इज सेकेंडरी. टेक फॉर एग्जांपल ए मिलियनियर हु कैन नॉट टेल वन पिक्चर फ्रॉम अनदर. मान लीजिए एक मिलियनियर है, लखपति है, जो फर्क नहीं कर सकता है, फर्क नहीं कर सकता है एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर से, एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर से. but has acquired a gallery of old masters by the help of experts. But has acquired, has got, उसने हासिल किया है gallery, a series of कह सकते हैं. Gallery means an exhibition room for works of art, or it means a series of pictures, or in ordinary language we also say gallery. A gallery of old masters, पुराने जो masters हैं उनका एक gallery बनाते हैं by the help of experts, माहिरीन की मदद. लेकिन खुद ये मिलीनियर, ये लखपति फर्क नहीं कर सकता एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर. The only pleasure he derives from his picture is the thought that others know how much they have cost. सिर्फ उसको एक प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है जो हासिल करता है इस पिक्चर से. इस थॉट, वो ये ख्याल है that others know, कि दूसरे लोग जानते हैं how much they have cost, कि उनकी कितनी कीमत है, कितना इनका वैल्यू है. Yes, yes, students. Last para. All this might be different. It has been different in many societies. ये अलग भी हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है, और रहा भी मुख्तलिफ है मुख्तलिफ बहुत सारी सोसाइटीज में. In aristocratic epochs, aristocratic means related to nobles, related to the rich classes. Epochs means ages. Men have been admired for their birth. मर्दों की तारीफ की गई है उनकी जो पैदाइश है, यानी बाय बर्थ. अगर वो नोबल है तो उनकी तारीफ की जाए. In some circles in Paris, circles means हल्के लोग. पेरिस में कुछ हल्कों में men are admired for their artistic excellence. मर्दों की तारीफ की जाती है जो उनके फन जो है उसमें कितनी बेहतरी है, कितनी ज़्यादा सलाहियत है. Strange as it may seem, अजीब जैसे कि लगता है. In a German university में a man may actually be admired for his learning. एक शख्स की तारीफ की जाती है हकीकत में उसका कितना नॉलेज है और कितनी उसके पास जानकारी. इन इंडिया सेंट्स आर एडमायर्ड, हिंदुस्तान में जो संत है उनकी तारीफ की जाती है. इन चाइना सेज, चाइना में जो सेजेस हैं उनकी तारीफ की जाती है. सेजेस, यू नो, इट मीन्स
wise men, hukuma, the study of these differing societies shows the correctness of analysis. जो इन डिफरिंग जो अलग अलग सोसाइटीज हैं उनका जब मुताला किया जाता है तो वह हमें क्या दिखाता है? करेक्टनेस ऑफ आवर एनालिसिस, जो हमारी एनालिसिस है उसकी दुरुस्ती दिखाता है, ये कितना सेहतमंद है हमारा ख्याल है। फॉर इन ऑल ऑफ देम, क्योंकि इन सभी सोसाइटीज में वी फाइंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ मेन, उनमें एक बड़ी परसेंटेज है लोगों की, मर्दों की, हु आर इनडिफरेंट, जो बेगर्ज होते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है टू मनी, पैसे के साथ, so long as they have enough to keep alive on, सिर्फ उस हद तक कि वो सोचते हैं हमें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इतना कर, बस, बाकी उनको किसी चीज के साथ कोई वास्ता नहीं। बट और keenly desirous of the merits by which in their environment respect is to be won। लेकिन वो keenly मुतमनी होते of the merits, of the rewards by which, जिनसे in their environment, अपने माहौल में respect is to be won, respect is to be gained, यानी इज्जत हासिल किया जाता है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोचता हूँ आपके लिए इतना काफी है। या रब ज़लमतु नफ्सी।